developing nutrition. It is the mode of nutrition in which the green plants, they prepare their own food with the help of a very special process that is known as photosynthesis. So as I'm saying कि green plants जो हैं they are able to prepare their food. So इसमें वो कहते हैं कि green plants जो हैं they use the certain substances as their raw material and basically they are inorganic in nature. So photosynthesis जो है उसके अंदर green plants जो है as a raw material क्या use करते हैं? So all of you know very well carbon dioxide is required and that carbon dioxide it enters into the leaves of the plant through special type of pores that are present in the epidermal layer and they are known as stomaters. ठीक है बेटे, तो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो किसके अंदर हो रहे हैं? प्लांट की लीव्स के अंदर हो रहे हैं और प्लांट के जो लीव्स हैं उसमें वो कहते हैं कि एपिडर्मिस लेयर जो होती है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, तो उसमें स्टोमेटास प्रेजेंट है. द नंबर ऑफ स्टोमेटास दे आर मोर इन द लोअर एपिडर्मिस and less in the upper epidermis. So through these stomatas the carbon dioxide gas it enters into the leaf for the purpose of photosynthesis. Okay but another thing is water. तो water जो है वो leaves में कैसे पहुंचेगा वो भी आपको मालूम है कि these leaves they obtain water by the simple method of absorption. तो generally special type of tissues that are present in the stem के अंदर present होते हैं water conduction के लिए. tissues कौन से? Xylem present है, ठीक है. And you are also familiar with the components of the xylem. These may be tracheids or these may be vessels. तो अगर long distance transport होना है water का तो कौन लेके जाएंगे? Vessels लेके जाएंगे. And in this way it finally reaches the leaves. तो leaves के अंदर water भी आ गया. leaves के अंदर क्या आ गया है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया. कितने मॉलिक्यूल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के? 6 molecules of carbon dioxide. It reacts with 12 molecules of water in the presence of chlorophyll pigment that is present in the leaf and sunlight को यहाँ पे मैंने represent किया है H nu से. H nu here represent one particle of light known as photon. ठीक है, तो पार्टिकल थ्योरी जो है लाइट की ये कहती है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है और एक पैकेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल H nu. तो H nu है रिप्रेजेंट वन पॉइंट. तो अब देखो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हम रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे? C6H12O6 along with how many molecules of oxygen it comes out? 6 molecules of oxygen along with 6 molecules of water. So smaller molecules they join together and form a bigger molecule. It is glucose here. It is a type of a carbohydrate. तो जब smaller molecules जो है वो join होकर एक bigger molecule बनाते हैं, ठीक है, जिसका molecular mass काफी ज्यादा होता है. तो such type of metabolic reactions they are known as what kind of reactions? They are known as anabolic reaction. तो याद रखिए कि metabolic reaction two types की है. अगर smaller molecules join होकर bigger molecules बनाते हैं तो anabolic reactions and if larger molecules they break down and as a result smaller molecules they are obtained then the reactions are known as catabolic reactions. ठीक है बेटे, इसी के साथ एक और चीज याद रखेंगे कि always remember कि anabolic reactions जो हैं वो हमेशा एनर्जी जो है उसको क्या करती हैं? कंज्यूम करती हैं, इसलिए वो एंडोथर्मिक होती है. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस यू हैव हर्ड दिस वर्ड इन केमिस्ट्री. एंडोथर्मिक मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि उसमें हमेशा लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे आर ऑब्टेन्ड. सो ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है बेटे, बाकी आपको पता है कि जब वो कहता है कि हमारे पास ग्लूकोज आ गया है तो दिस ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है, प्लांट के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो है ये यूज हो जाएगा. अगर वो कहता है कि सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज लेफ्ट, so how the plant they are going to store that extra glucose? So you know that in case of plants this extra carbohydrates they are stored in the form of starch. पर अगर इसकी जगह पे हमारे पास एनिमल्स होते हैं तो उसमें ये एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा. ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होंगे और एनिमल्स में किसकी फॉर्म में स्टोर होंगे? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होंगे.
ठीक है बेटे। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है तो वो आपको पता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नोन एज ATPs and they are known as the energy currency of the cell. Clear बेटे? उसके बाद देखो I am on page number 96 and 3 steps are given here related with photosynthesis. First is during the photosynthesis, because photosynthesis is a complex type of chemical reactions that are occurring in plants. The first step is absorption of light energy by the chlorophyll pigment. So all of you know that inside the leaves green color pigment is present in special type of cell organelles which are known as chloroplast and this pigment is known as chlorophyll. तो देखो बेटे क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ना वो सन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें से रेड और ब्लू लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वाली लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी यहाँ पर एक नहीं है, एक जो क्लोरोफिल ए है दैट इज द चीफ पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बट देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो क्या करते हैं, जो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं। तो दीज आर नोन एज द सेसरी पिगमेंट। So what I am saying, there are two types of chlorophyll pigment. One is known as the main chlorophyll, which is absorbing 95% light, and that light is corresponding to red and blue wavelength. ठीक है बेटे। बाकी जो है वो सेसरी पिगमेंट है, तो सेसरी पिगमेंट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल बी आ जाता है, ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करनी है, तो दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग ऑफ लाइट, इसको हार्वेस्टिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो लाइट एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद वो कहते हैं कि इस लाइट की हेल्प से क्या होगा, तो इस लाइट की हेल्प से जो है यहाँ पर ये लाइट एनर्जी यूज हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, और इससे क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किसकी हेल्प से बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है उसकी वजह से बने हैं। और एक और इवेंट होता है इस दौरान, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होने के बाद जो है उसमें से क्या निकलता है, तो वाटर जो है उसकी स्प्लिटिंग के बाद देखो वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे H2O से, और अगर वो कहता है कि इसकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, तो स्प्लिटिंग होने के बाद हमें एक तो मिलती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है बेटे, और इसके साथ में हमें 2 हाइड्रोजन आयंस। तो अगर 2 प्रोटॉन्स निकले हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है जो स्प्लिट होगा, तो देखो बेटा H के नीचे मैंने 2 लिखा है ना, इसलिए मैंने जब भी वाटर एक कंपाउंड है और उसमें से अगर हाइड्रोजन कभी भी अलग होता है ना तो वो हमेशा प्रोटॉन की फॉर्म में अलग होता है, बता दिया मैंने, लिखा हुआ है ये भी नोट्स के अंदर। इतना बड़ा क्या है उसमें, एक छोटी सी रिएक्शन है, वाटर लिया एंड उसका जब ब्रेकडाउन हुआ एक तो ऑक्सीजन निकली, ठीक है बेटे, और एक उसके साथ क्या निकले हैं, 2 प्रोटॉन्स निकले हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है, आगे जाके तुमने केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके कंपैरिजन में तो ये सिर्फ एक रिएक्शन है, ठीक है बेटे। फिर देखो रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है और उससे क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि द ऑक्सीजन गैस व्हिच इज इवॉल्व्ड एज अ एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द water molecule. And what about carbon dioxide? So carbon dioxide it reduced and formed the carbohydrates, ठीक है बेटे, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि if you see the cross section of the leaf, then what you see, this diagram is very much familiar to you. You have also studied the diagram in class 7. एक साल मैंने भी 7th क्लास पढ़ाई थी और उसमें ये डायग्राम था, अब आपको याद आ जाएगा। When we take the cross section of the leaf, what you see, there is an outer layer present, ठीक है बेटे, and that is known as upper epidermis. Then there are some of the cells which are compactly arranged, ठीक है। So there may be 2 or 3 layers of these cells, and all of these cells they are very tightly packed or compactly arranged.
Then there are certain cells which are somewhat spherical in nature, having wider spaces present between them. Okay? Yes. और उसके बाद फिर से हमें क्या नजर आती है यहाँ पर, एपिडर्मिस जो है वो नजर आती है, और उस एपिडर्मिस पे मुझे नजर आते हैं खूब सारे क्या, स्टोमेटा। ठीक है बेटे? So when you see the cross section of the leaf, you get familiar with variety of cells. The uppermost layer of the leaf, which contains few stomata, it is known as upper epidermis. ठीक है बेटे, इसको upper epidermis बोलेंगे. Then there are some compactly arranged cells or tightly arranged cells having chloroplast present in them. So this is known as palisade cells या टिश्यू. ठीक है बेटे? उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ स्फेरिकल हमें सेल्स नजर आते हैं, और उसके अंदर भी हमें क्या नजर आते हैं, क्लोरोप्लास्ट नजर आते हैं, क्योंकि ये लीफ का डायग्राम है, तो इसको हमने नेम दिया है यहाँ पर, दिस इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. ओके बेटे? तो दोनों को अगर मिला दें, पहले से टिश्यू को भी एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को भी, तो इस एंटायर टिश्यू को हम क्या कहते हैं, मेसोफिल टिश्यू. ठीक है? और नीचे आपको क्या नजर आ रही है, लोअर एपिडर्मिस नजर आ रही है. खुश हो गए बेटा? ठीक है? बहुत ही हैप्पी फील करते हैं सब्जेक्ट को लेकर, और चाहे सब्जेक्ट कितना भी डिफिकल्ट हो, कोई इग्नोर हो. और अगर हमने मुंह बनाया हुआ होगा ऐसे मुझे लगा कि जबरदस्ती हमारे अंदर में जो है वो बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं. ठीक है? whenever you open your biology book you will always be happy, और ये सोच रहे हैं कि मुझे सारा कुछ आता है. ठीक है बेटे? अब मैंने आपको ये बताया, मैं भी जवाब देती हूँ. अगर आप लीफ का जो है क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपर एपिडर्मिस नजर आएगी, and in that upper epidermis few stomata are there, and in the lower epidermis the number of stomata are more. Then there is one question, why the lower epidermis has more number of stomata as compared to upper epidermis? क्योंकि जो अपर एपिडर्मिस है लीफ की, ठीक है बेटे, लैमिना का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा ना, तो इसलिए वहां पे अगर ज्यादा स्टोमेटा होंगे, देन मोर एंड मोर वाटर इट गेट लॉस्ट फ्रॉम द स्टोमेटास ऑफ द अपर एपिडर्मिस. तो उससे क्या हो सकते हैं, लीव्स जो है उनकी फोटो बर्निंग हो सकती है. तो इसीलिए लीफ की जो बैक साइड होती है वहां पर जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है, क्योंकि वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते. एंड ये जो पैलिसेड टिश्यूज हैं, ये पैलिसेड टिश्यूज जो हैं कंपैक्टली अरेंज्ड सेल से बने हुए हैं, और इसमें प्रेजेंट है लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और उन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है बहुत सारा क्लोरोफिल. ठीक है? तो किसी भी लीफ के अंदर जितने ज्यादा क्वांटिटी है क्लोरोफिल की, उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग करेगा, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है? और उसके बाद स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसमें भी क्लोरोफिल है. जिसका मतलब पूरा का पूरा जो लीफ का लैमिना है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग करता है. तो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि हर एक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता क्लोरोफिल पिगमेंट. There is a chief chlorophyll pigment which is known as chlorophyll A, and it absorbs the light that is of color red and blue. ठीक है? रेड एंड ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी जो भी वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ वाली लाइट को भी क्लोरोफिल ए जो है वो अब्सॉर्ब करता है. पर क्लोरोफिल ए के अलावा देयर आर सम ऑफ द अदर एसेंशियल पिगमेंट्स, जिसमें भी ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स. ठीक है? ये क्या करते हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और बाद में किसको हैंड ओवर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर देते हैं. क्लियर बेटे सारा कुछ? चलो अब उसके आगे बढ़ते हैं. इसका गार्ड सेल्स कहाँ पर होते हैं? देखो गार्ड सेल्स जो है समवट ग्रीन ही रहेंगे अगर वो लीफ से रिलेटेड है. उसके आसपास एपिडर्मल सेल्स होंगे जिसको सबसाइडरी सेल्स. ठीक है? अभी मैं पहुंची नहीं हूँ वैसे वहां पर. वो कुछ नहीं, वो इमेजिनरी कलर फिल कर देते हैं, उसको लेके आना अपने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो जाना कि भाई इसमें उसने येलो भर दिया तो गार्ड सेल्स जो है वो येलो ही है. ये सिर्फ इमेजिनरी कलर्स हैं. ठीक है बेटे? अच्छा जी, उसके बाद देखो बेटे, देयर इज वन एक्टिविटी गिवन, और उसके अंदर हमने क्या किया था, वी सेलेक्ट अ पॉटेड प्लांट एंड दैट प्लांट शुड हैव वेरीगेटेड लीव्स.
ठीक है। तो वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन के अलावा जो है और भी दूसरे कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, वी हैव प्लग्ड वन लीफ दैट इज अ वेरीगेटेड लीफ एंड वी टेक अ ट्रेस पेपर, और उस ट्रेस पेपर पे हमने वेरीगेटेड लीफ जो है उसके वो वाले पैचेस जो है उसको ड्रॉ कर लिया है विच आर ग्रीन इन कलर। ठीक है बेटे, सिर्फ ग्रीन ग्रीन पोर्शंस जो है उसको मार्क कर लिया हमने ट्रेस पेपर पे। और उसके बाद वो कहता है कि फिर हमने क्या किया, हमने उस प्लांट को एक डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, लगभग कितने दिनों के लिए रख दिया है, फॉर 3 to 4 days। तो व्हाई वी पुट दैट प्लांट इन द डार्क रूम, बिकॉज यू नो दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट रिएक्शन, और अगर आप उसे डार्क रूम में रख देंगे तो जो भी लीफ के अंदर पहले से स्टार्च फॉर्मेशन हो रखा है वो धीरे धीरे क्या होगा, यूज हो जाएगा एंड लीफ जो है उसमें स्टार्च खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि आपने लीफ जो है उसको फिर 3 दिनों के लिए जो है डार्क में रख दिया एंड देन यू अगेन रिमूव दैट प्लांट, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसको सनलाइट में रख देते हैं। ठीक है, इट मे बी 4 to 6 hours एंड आफ्टर दैट फिर आपने क्या किया, एक लीफ जो है उसको प्लग किया और उसको कुछ टाइम के लिए जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया है, और उसके बाद आपने उस लीफ को फिर से निकाल लिया और एक बीकर लिया एंड वी पुट अल्कोहल इन दैट बीकर। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू बॉयल द अल्कोहल ऑन डायरेक्ट फ्लेम, क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लामेबल होती है एंड वो फायर ले लेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बीकर लेके उसमें अल्कोहल डालते हैं और नीचे एक बड़ा कंटेनर लेते हैं विच इज वाटर बाथ, और उसके अंदर काफी सारा वाटर डाल के वी पुट दैट स्मॉल बीकर इनसाइड इट, और जो लीफ हमने प्लग किया था उसको थोड़े समय के लिए किसके अंदर डाल देंगे, अल्कोहल के अंदर डाल देंगे। ठीक है बेटा, फिर उसको थोड़े टाइम के बाद हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, और अब हम क्या करने वाले हैं, उसका आयोडीन टेस्ट करने वाले हैं। तो यू आर वेरी मच फेमिलियर फ्रॉम योर लोअर क्लासेस कि आयोडीन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च इट ऑलवेज गिव व्हाट काइंड ऑफ कलर, वॉयलेट या ब्लू ब्लैक कलर कह सकते हैं। ठीक बेटे, तो व्हेन यू डू आयोडीन टेस्ट फॉर दिस लीफ, जिसको हमने अब अल्कोहल में से निकाल लिया है, तो व्हाट यू सी कि लीफ जो है उसके पूरा एरिया जो है, लैमिना जो है, एंटायर लैमिना ऑफ द लीफ, इट इज नॉट गोइंग टू गिव ब्लू ब्लैक कलर, ओनली दैट पोर्शंस ऑफ द लीफ वेयर द ग्रीन कलर इज प्रेजेंट। ठीक है, वहीं पे क्या हुआ था, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था, तो वहीं पे हमें कौन सा कलर नजर आएगा, ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा। अब जब उस लीफ ने ब्लू ब्लैक कलर डेवलप कर लिया है ना, कलर ऑफ द लीफ वेयर द ब्लू ब्लैक कलर, on the basis of that what you see, on the basis of that you see that कि in the green portion of the leaf का जो green portion होता है, in that portion what is present, chlorophyll pigment is present, and that chlorophyll pigment it actually harvests light, and because of this light photosynthesis happen। तो always remember photosynthesis जो है वो प्लांट के किसी भी पार्ट के अंदर नहीं होता, सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्ट ऑफ द एरिया जो है लैमिना का उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है बेटे, क्लियर है। अब उसी के जैसे एक और एक्टिविटी उसने दी है, एक्टिविटी नंबर 6.2, व्हाट वी हैव डन इन दिस एक्टिविटी, वी टेक अ बेल यार। बेल यार क्या है, एक यार है जो कि बेल की फॉर्म में है। ठीक है बेटे, कोई भी एक हमने टेबल प्लेटफॉर्म ले लिया, उसके ऊपर वी हैव पुट 2 पॉटेड प्लांट्स, और दोनों ही पॉटेड प्लांट्स पे वी कवर इट विद द हेल्प ऑफ ए बेल यार, और बेल यार जो है वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। व्हाट वी डन फॉर apparatus नंबर 1, apparatus नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है कि वी हैव पुट वन वॉच ग्लास, और उस वॉच ग्लास में हमने क्या रखा हुआ है, तो कहते हैं कि उस वॉच ग्लास के अंदर आपने क्या डाली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाली है। देखो ये फॉर्मूला हमें मालूम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन एब्सॉर्ब गैसेस। ठीक है बेटे, apparatus 1 में हमने पॉटेड प्लांट के साथ वी प्लेस्ड अ वॉच ग्लास, and in that watch glass the potassium hydroxide is there, as we covered the plant with the help of a bell yarn. So what you see, whatever amount of carbon dioxide is there inside the bell yarn, धीरे धीरे उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद दूसरा वाला जो प्लांट है उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ। ठीक है बेटे, पॉट जो है उसको हमने ट्रांसपेरेंट बेल यार्ड से कवर किया है, इसका मतलब सनलाइट उसके अंदर जा रही है तो फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, वी डू द आयोडीन टेस्ट फॉर दिस। व्हेन वी डू द आयोडीन टेस्ट फॉर apparatus number 1, so you know that in apparatus number 1 potassium hydroxide is there,
and it has already observed the carbon dioxide. So when you pluck the leaf and do the iodine test for it, तो आपको पता लगेगा कि जो लीफ फर्स्ट वाले apparatus के हैं उनमें स्टार्च फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि सनलाइट तो बेशक प्रेजेंट थी पर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वहां पे नहीं मिल पाई है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए स्टार्च जो है उसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है एंड लीव्स जो है उन्होंने ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं डेवलप किया. But when you perform the same test for apparatus number 2, so here in case of apparatus number 2 potassium hydroxide is not there, तो वहां पे जब आप टेस्ट करोगे तो आपको जो लीव्स हैं वो कौन सा कलर देते हुए नजर आएंगे, ब्लू ब्लैक कलर देते हुए नजर आएंगे. तो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है बेटे. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा डिजाइन एन एक्टिविटी व्हिच प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो कौन सी एक्टिविटी देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली. और अगर आपको ये बोला जाता है प्रूव बाय गिविंग एन एक्टिविटी दैट photosynthesis only takes place in the green portions of the leaf, तब कौन सी एक्टिविटी देंगे, variegated leaves वाली. ठीक है बेटे. उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा. So you have learned in your previous classes that stomata are the minute pores and they are present in majority in the lower epidermis of the leaf. ठीक है. तो स्टोमेटा in case of dicot plant, अगर हम dicot plant की बात करते हैं तो स्टोमेटा they are generally kidney shape या vein shape होते हैं इस तरह से. ठीक है बेटे. तो दिस इज नोन एज द stomatal pore. इसको हम stomatal pore कहते हैं या कुछ बुक्स के अंदर इसके लिए वर्ड यूज किया गया है stoma. It is also known as stoma. ठीक है. And stoma जो है it is surrounded by kidney shaped cells and these kidney shaped cells they are known as the guard cells. They are known as guard cells. And guard cells are further surrounded by so many additional epidermal cells. So these are additional epidermal cells which surrounds the guard cells, they are known as the subsidiary cells. ठीक है बेटे. Subsidiary cells along with the guard cells and stomatal pore, they are collectively known as stomatal apparatus. तो stomatal apparatus में तीन चीजें आ जाती हैं. स्मॉल पोर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं या stomatal pore कहते हैं. और उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है विच आर द किडनी शेप्ड सेल्स. और उसके आसपास कौन सराउंड कर रहे हैं उसको, एपिडर्मल सेल्स सराउंड कर रहे हैं. न्यूमरस एपिडर्मल सेल्स आते हैं. दीस आर नोन एज सबसाइडरी सेल्स. तो सबसाइडरी सेल्स प्लस गार्ड सेल्स प्लस स्टोमेटल पोर, दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्टोमेटल apparatus. ये तो हो गया डाइकॉट के केस में. अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है मोनोकॉट प्लांट है, एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स आर बीट, मेज, पैडी. ठीक है. राइस जिसे हम कहते हैं. So instead of these kidney shaped guard cells, here we have the guard cells which have the shape of dumbbells. ठीक है. तो यहाँ पे हमें kidney shaped guard cells नहीं नजर आती हैं, उसकी जगह पे हमें क्या नजर आती हैं, dumbbell shaped guard cells जो है वो इस तरह की नजर आती हैं. ठीक है बेटे. और यहाँ पे stomatal pore कौन सा है, तो देखो this is the stomatal pore. ठीक है. This is the stomatal pore. And these are the dumbbell shaped guard cells, and these guard cells they are further surrounded by so many epidermal cells which are known as the subsidiary cells. ठीक है बेटा. इसके आसपास सारे क्या प्रेजेंट है, सबसाइडरी सेल्स प्रेजेंट हैं. अब एक और खास चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि these guard cells they generally closed during the daytime and open during the night time. ऐसा क्यों, कितने बच्चों को ये लग रहा है कि मैंने जो बोला है वो सही है. देखो बेटे, फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट रिएक्शन और स्टोमेटा जो है उससे क्या जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड जानी है. तो स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम क्लोज क्यों होंगे, फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा. ठीक है. तो स्टोमेटा दिन के टाइम क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे. और ओपन होने की वजह से उसमें कौन सी गैस जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी. और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी एंड उससे क्या बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे. ठीक है बेटे. और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनी है ना वो भी स्टोमेटा से ही बाहर चले जाएगी. ठीक है. अब वो कहता है कि ये जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं. एंड गार्ड सेल्स तो है
वो स्टोमेटा जो है उसको ओपन करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। ओपन कौन से टाइम पे करते हैं? दे ओपन द स्टोमेटास ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग दैट कहते हैं कि जब स्टोमेटा जो है उनको इन्होंने ओपन करने हैं, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की वो गार्ड सेल्स के टर्जिडिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि whether the guard cells they have abundance of water inside it, अगर उसमें काफी सारा वाटर है, काफी सारे अमाउंट में पोटेशियम आयंस है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन होंगे। पर अगर पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो गई है एंड वाटर भी कम हो गया है, उस केस में टर्जिडिटी क्या हो जाएगी? गार्ड सेल्स की कम हो जाएगी और गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे एंड स्टोमेटल कोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटे, देखो डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उनके अंदर स्टोमेटास जो हैं दे आर डीपली एम्बेडेड इनसाइड द लीव्स, और यहाँ पे सकल स्टोमेटास होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनका एक अलग मेथड है। ठीक है बेटे, ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटास जो हैं डेजर्ट प्लांट्स के केस में ओपन जो है वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे, और उसके बाद जो है जैसे वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कर लेते हैं देन रेस्ट ऑफ द टाइम दे विल क्लोज। ठीक है, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड चले तो गई, पर उसके बाद स्टोमेटास क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। तो उसमें डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। इनिशियली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनने से पहले देयर इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इट इज फॉर्म्ड एंड दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, डे टाइम के दौरान वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेटर ऑन किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। बस इतनी सी एडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट्स के केस में। ठीक है, चलिए अब हम we have done this page number, उसमें देखो 97 पे there is very one small paragraph is given and here it is written that from the soil the plant obtains lot of things। ठीक है, soil जो है उसमें से plants जो हैं वो बहुत सारी जो है minerals भी absorb करते हैं। so the chief minerals or elements that are taken up by plants for their growth, it includes nitrates and phosphates। ठीक है बेटे, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है these are the elements which are required for the growth of the plant, but plants are not able to take this nitrogen and phosphorus in their true forms। तो नाइट्रोजन जो है उसको वो किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है NO3- एंड नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2-। ठीक है बेटे, और फास्फोरस जो है उसको किस फॉर्म में लेते हैं? तो they are not able to take the phosphorus directly, they take the phosphorus in the form of phosphate ions। ठीक है बेटे, फास्फोरस को किस फॉर्म में लेंगे? फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में लेंगे। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर, but plant is not able to take that nitrogen in gaseous forms, so they have to take that nitrogen either in the form of nitrates or in the form of nitrites। तो ये नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाने में कुछ बैक्टीरिया इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है बेटे, हाँ, तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड समटाइम्स दे आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स जिसमें जितने भी हमारी ये हैं दालें वगैरह, पल्सेस हैं, सोयाबीन है, चिकपीस है, किडनी बीन्स है, सारे आ जाते हैं। ठीक है बेटे, तो व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ दीस प्लांट्स व्हाट यू सी, आपको लगेगा कि रूट्स जो है वो बीच बीच में से swollen है and these swollen areas are actually known as the nodules and these nodules they have characteristic pink color। इसका पिंक कलर क्यों होता है? तो इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होता है, जैसे हमारे ब्लड में पिगमेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, जिससे हमारे ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। तो जो नोड्यूल्स है उसका पिंक कलर जो है वो भी पिगमेंट की वजह से होता है and that pigment is known as lactic hemoglobin। ओके बेटे, तो राइजोबियम बैक्टीरियम जो है ना, वैसे तो वो सॉइल में जब प्रेजेंट होता है तो इट इज एनारोबिक इन नेचर, बट व्हेन इट एंटर्स इनटू द नोड्यूल्स ऑफ दीस प्लांट्स तो वो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये लैक्टिक हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? राइजोबियम को ऑक्सीजन देता है एंड देन राइजोबियम जो फ्री नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नॉट ओनली राइजोबियम, देयर आर टू मोर बैक्टीरियाज एंड देयर नेम्स आर नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोकोकस, और ये बैक्टीरिया जो हैं ये भी नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगी, उस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन, फिर अमोनिया से नाइट्रेट बनेंगे और फिर नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेंगे। तो जब नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बनेंगे अमोनिया से तो प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। और तीन बैक्टीरिया है, सिर्फ तीन ही है, फर्स्ट इज राइजोबियम,
ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड है पुराना, सबको याद है। एंड दो बस नए याद करने हैं, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, ये मैंने कराए थे उसमें। ठीक है, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोकोकस आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन which is generally found in case of animals, because animals they have not prepared their own food, they are dependent on plants either directly or indirectly. ठीक है बेटे, अगर तो वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। आपको मालूम है प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए वी हैव यूज्ड द वर्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, और दूसरे केस में वो क्या हो सकते हैं, अगर वो प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, देन दे आर नोन एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड देन कार्निवोर्स हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और क्या हो सकते हैं, ऑमनीवोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हम इस जगह पे इनको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, बिकॉज वी हैव वन चैप्टर अवर एनवायरनमेंट एंड उसमें ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, लॉट ऑफ टाइम वी विल रिपीट। ठीक है, तो उसके बाद देखो बाकी सारा मैंने आपको बता दिया कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फंजाई। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द फंजाई, ब्रेड, मोल्ड, राइजोपस। तो उनका जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटे, जब भी कोई चीजें जो है वो डीके हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, तो उसके ऊपर फंजाई या बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है इनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक। तो वो मैंने बता दिया था कि एक होस्ट रहेगा, एक पैरासाइट रहेगा। पैरासाइट जो है ड्रॉस इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इट में भी एक्टो और इट में भी एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो बस अब हम ह्यूमन पे पहुंच जाएंगे जल्दी, फिर मजे रहेंगे उसमें। वो अपने से रिलेटेड होते हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी जाते हैं।